Namaskar, my all dear student of class 12. I'm your English mentor, brought to you another chapter's textual part from the book Vistas, that is chapter number 5, The Enemy, written by Pearl S. Buck. We have completed line by line explanation of this long and lengthy chapter, and now we are moving towards the question answer part. Of all the important question answers are included in this video from different exam on different years they have appeared in the examination. So you need not to go anywhere for collecting the questions related to this chapter. I have brought it already for you in this video. So first we are going towards the short question answer that you need to write in 3 marks, that is literally 0 marks. It is not 0 marks, it is 3 marks, okay? Short question and answer. You are supposed to write near about 4 to 5 and probably 6 lines sometime in this 30 to 40 words, okay? Now, question number 1, why did Dr. Sadao treat the American soldier even though it was an unpatriotic act on his part? 2014 question is there. Dr. Sadao treated the American prisoner of the war because as a doctor he was trained to save the lives. He could not have let the injured soldier die even though he was his national enemy, as that would have been against it professional ethics. तो वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने ओथ ली थी एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिग्री ऑफ द डॉक्टर कि वो जो लाइफ था उसको बचाने के लिए ट्रेन किए गए थे, एंड दैट्स वाई जो इंजर्ड सोल्जर उनको मिला वो उनका नेशनल एनिमी था, बट फिर भी उन्होंने अपना प्रोफेशनल लेवल को पहले रखा. जो एथिक्स थे, एथिक्स इज कॉल्ड मैनर्स, जो ओथ उन्होंने ली थी उसको पहले रखा, प्रायोरिटी दी और उसकी जान बचाई. How did Hannah help Dr. Sadao? 2014. Hannah was an impeccable wife and stood by her husband in all his decisions. She helped Dr. Sadao when he was operating upon an enemy, and also nursed and washed the prisoner herself when the servant had flatly refused to do so. तो हाना ने कैसे हेल्प किया? हाना बिल्कुल इम्पैकेबल वाइफ आप बोल सकते हो शेडो, जस्ट लाइक अ शेडो ऑफ डॉक्टर सदाओ. वो हर समय उनके लिए कोऑपरेटिव एटीट्यूड वो शो करती थी, और जितने भी उन्होंने उनके हस्बैंड ने जो भी डिसीजन लिए उन सब में उनका साथ दिया. उसने एनिमी को नर्स भी किया, मतलब जो आफ्टर, ठीक है, पोस्ट रिकवरी होती है उसमें उसने काफ़ी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि जो सर्वेंट्स थे घर के उन्होंने पूरी फ्लैटली रिफ्यूज़, मतलब पूरे तरीके से क्वाइटली रिफ्यूज़, साफ मना कर दिया था कि वो कुछ नहीं करेंगे. Why did the journal not order immediate arrest of Dr. Sadao, who had sheltered a white man? 2014. यहाँ पे जर्नल टकीमा की बात की है कि उन्होंने कैसे इमीडिएटली उसको अरेस्ट करने की बात क्यों नहीं की जब उन्होंने पता चला कि हाँ डॉक्टर सदाओ ने एक एनिमी को घर में शेल्टर दिया है. The journal did not usually keep in good health and trusted no other surgeon but Dr. Sadao in his time of the need, and could have needed his services anytime. This is why he did not order immediate arrest of the doctor for harboring an enemy in his house. तो यहाँ पे उसका सेल्फिश मीन था जर्नल का कि वो बहुत बीमार रहते थे और कभी भी उनको उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती थी. एनी टाइम he was in need of the services of Dr. Sadao, and that's why this was the reason that he had not given immediate arrest order for Dr. Sadao. What forced Dr. Sadao to be impatient and irritable with his patient? कब वो उस अपने पेशेंट जो था उससे impatient हो जाते हैं, irritate हो जाते हैं? Twice this question have been repeated. The wounded white man urgently needed an operation and he was critically injured. Hannah was with Dr. Sadao when he started operating on the prisoner. Hannah, who had never seen an operation in her life, vomited at the sight of the blood. Sadao wanted to help her in her distress, but he could not leave his patient. This made him impatient and irritable. अब यहाँ पे straight up answer मत लिखना कि हाँ वो जब ऑपरेशन कर रहे थे and Hannah was feeling wretched and that's why he felt irritated. जब क्वेश्चन आता है तो दैट वाज टोटली न्यू फॉर यू, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है. ऑपरेशन किसका कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, वहाँ आप उसको हाना को वॉमिट क्यों आई, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी है. दैट्स वाई कि हाना ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था एंड ही वॉज ट्रीटिंग अ शेल्टर्ड पर्सन दैट वॉज द प्रिजनर ऑफ द वॉर इन हिज होम, एंड ही हैड नेवर सीन, दो ही हैज़ नेवर सीन एन ऑपरेशन, एंड दैट्स वाई शी वॉज वॉमिटिंग. और वो उनकी हेल्प करना चाहते थे हाना की बाहर जाकर, बट ही वॉज नॉट इन द स्टेज टू लीव दैट पेशेंट बिकॉज उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, एंड दैट्स वाई ही was feeling impatient and irritable.
What made a cool surgeon like Sadao speak sharply to his wife? What made her reaction? What was her reaction? ऑल इंडिया 2013 में आया है कि जब उन्होंने डॉक्टर सदाओ ने बहुत शार्पली जब उसको बोला तो उसका क्या रिएक्शन था. Hannah had never seen an operation before. When Sadao started operating, blood began to flow and Hannah choked at that moment. Sadao sharply told her not to faint because if he had stopped, the wounded man would surely have died. Hannah clasped her hand to her mouth and ran out. Sadao heard her vomit. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब उसने ऑपरेशन जब हो रहा था बहुत सारा ब्लड निकल रहा था एंड हाना वाज नॉट इन द प्रैक्टिस के बहुत इतना सारा ब्लड देखे, कोई थोड़ा सा ब्लड देख के भी हम लोगों को वॉमिट आने लगती है. तो अभी व्हेन हाना वाज चोकिंग, ठीक है, तो डॉक्टर सदाओ ने कहा कि डोंट फेंट हियर. ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि वो भी अनकॉन्शियस हो जाएगी. तो डॉक्टर सदाओ ने शार्पली कहा कि भाई यहाँ फेंट मत हो जाना तुम, बिकॉज अगर मैंने अभी रोका तो दिस मैन वुड श्योरली हैव डाइड. So that's why Hannah ने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद किया and she went out where she was vomiting. Why had Hannah to wash the wounded man herself? 2012. Or why did Hannah wash the wounded soldier herself? 2011. Hannah had to wash the wounded man herself because a servant and even her maid servant flatly refused to wash an enemy American out of the superstition and fear. अब देखो यहाँ पर 30 और 40 वर्ड्स का अगर हम काउंट करें तो हो गया है. अगर आप इस लाइन को लिखोगे तो आपके आराम से 4 या 5 लाइन्स हो जाएंगी. एक बार काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 30 में 2-3 वर्ड की कमी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा हो गया. यहाँ पे एक लाइन में देखो 11 वर्ड्स आए हैं तो 22 आए हैं. तो अगर आप 3 लाइन कंप्लीट कर दोगे तो आपके 30 या 40 वर्ड्स हो जाएंगे. तो डोंट टेक रिस्क, 30 से कम वर्ड्स नहीं लिखने हैं, ये ध्यान रखेंगे. तो उनके घर में जो भी सर्वेंट्स थे, जो मेड सर्वेंट्स थी, उसने फ्लैटली मना कर दिया. इसीलिए हाना को उस जो सोल्जर था उसको वॉश करना पड़ा. How did Dr. Sadao ensure that the American sailor left the house but he himself remained safe and secure? ये आया है 2011 में. The night the man escaped as per the plan, Dr. Sadao slept well. One evening, standing on the veranda, Dr. Sadao looked toward the island. There was no signal of the flashlight. It meant that the man had gone safe on the Korean fishing boat. In this way, he ensured that the Americans' departure and his own safety and security. तो यहाँ पे लास्ट से है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये उसके ड्यूरिंग का नहीं है. डिपार्चर, आफ्टर द डिपार्चर ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है. आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि डॉक्टर सदाओ ने कैसे इंश्योर किया कि अमेरिकन सेलर भी सेफ है और वो भी सेफ है. यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन से पूछा है, मतलब टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द चैप्टर से पूछा है. तो जब उन्होंने सोल्जर को बोला था कि भाई इफ़ यू आर इन एनी ट्रबल और स्टिल यू आर देयर ऑन द आइलैंड, तो मुझे 1 कर देना, फ्लैश कर देना. अगर तुम्हारे पास खाना खत्म हो रहा हो तो 2 फ्लैश कर देना. जब वहाँ से कोई भी सिग्नल नहीं आया है एनी डे, तो उनको क्या लगा कि कोरियन फिश बोट में चला गया है. बिकॉज ही डायरेक्टेड हिम कि तुमको सिर्फ कोरियन फिश बोट आए तभी जाना है, तब तक तुमको आइलैंड पे रहना है. तो उन्होंने ये सोचा कि अगर फ्लैश लाइट नहीं आई है, मतलब अमेरिकन जो है वो डिपार्ट कर गया है वहाँ से, वो चला गया है, मतलब वो भी सेफ है और डॉक्टर सदाओ भी सेफ है. How does the writer indicate that Dr. Sadao's father was a very traditional and conventional man? 2011. Sadao's education had been his father's chief concern, who even sent him to America at the age of the 22 to study surgery and medicine. Sadao's father was a true patriot and took immense pride in Japanese culture and tradition. That is why Sadao married Hana only after confirming that she was Japanese, as he did not want to upset his father. This suggests that Sadao's father was a very traditional and conventional man. अब देखो ये 30-40 के लिमिट से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे आपको ये अमेरिका का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि हाना से वो वहीं मिले थे. तो आपने जब पहले ये लाइन लिख दी कि हाँ वो अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा मानते थे, जापानीज़ कल्चर से बहुत ज़्यादा क्लिंग थे, तो यहाँ पे आप एक वर्ड ऐड कर सकते हो कि दैट इज़ वाई डॉक्टर सदाओ हु मेट हाना इन अमेरिका एंड मैरिड ओनली आफ्टर कन्फर्म. ठीक है, ऊपर की 2 लाइनें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये लिखने की ज़रूरत है, दैट इज़ वाई सदाओ, उसके बाद हु मेट हाना इन अमेरिका, ठीक है, एंड गॉट मैरिड
only after confirming. ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक फ्रेज बढ़ा दिया, ऊपर की जो 2 लाइनें थी वो हमने नहीं लिखी. हाँ, थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत आउट ऑफ लिमिट जा रहा था तो ये 2 लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है. वो कहाँ मिली हमने वहाँ पे बता दिया, आगे बता दिया कि वो वहाँ पे मिली थी और उसके बाद उन्होंने कैसे मैरिज किया. उनको पता था कि भाई जापानीज स्टाइल में जस्ट आफ्टर द कंसेंट और एसेंट ऑफ हिज फादर ही गॉट मैरिड विद हाना. अब सदाओ के जो फादर थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मैन थे. ये इससे पता चलता है. उसके सदाओ के बिंग एंड बॉटअप या नरिशमेंट में भी दिखाई देता है. Why did messenger come to Dr. Sadao? What did Hana think about it? 2010. The messenger had come to Dr. Sadao's house to inform him that the old journal was in pain again and had to be attended to. When Hana first saw the uniformed messenger, she got frightened, for she thought that he had come to arrest her husband for harboring an enemy in the house. तो यहाँ पे ये बताया है कि वो जो मैसेंजर आया था, सबसे पहले तो हाना डर गई क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहने हुए था. एंड हाना को क्या लगा कि अभी सुबह ही क्या हुआ था, ऑल द सर्वेंट्स डिपार्ट. ठीक है, सर्वेंट जितने भी थे वो दे लेफ्ट द होम. तो उसको क्या लगा कि किसी ने इन्फॉर्म कर दिया है. नाउ दिस मैसेंजर हैज़ ब्रॉट फॉर द अरेस्टिंग वारंट फॉर अरेस्टिंग हर हस्बैंड. उसके हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए लेके आई है क्योंकि उन्होंने हार्बर किया है, शेल्टर किया है एक प्रिजनर ऑफ द वॉर को. Why did the journal spare the American soldier? Spare is called छोड़ देना. 2009 का क्वेश्चन है. ये भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर है. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट पे बेस्ड है. The journal spared the American soldiers because he was selfish man. He thought of nothing but his own life and he needed Sadao of his operation and he forgot about his promise in his pain. तो उन्होंने क्यों छोड़ दिया उस सोल्जर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे. अपने पेन की वजह से उन्होंने जो प्रॉमिस किया था डॉक्टर सदाओ को, क्या प्रॉमिस किया था कि भाई आई वुड डेफिनेटली सेंड द असिस्टेंट्स, द मर्डरर्स हु वुड फिनिश द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर्स एंड लेफ्ट नो स्टेन. कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ेंगे, बट वो प्रॉमिस भूल गए अपने पेन में एंड दैट्स वाई उन्होंने अमेरिकन सोल्जर की जो लाइफ थी उसको छोड़ दिया. Why was Dr. Sadao not sent to the battlefield? 2009. Dr. Sadao was not sent abroad with the troops because the ailing journal trusted no other surgeon but Dr. Sadao and could have needed his expert services anytime. तो एक तो ये रीज़न था. दूसरा क्या था रीज़न? एंड यहाँ पे दूसरा रीज़न भी आप लिख सकते हो. Because of his going on discovery of render the wound. ये 2 रीज़न थे. एक रीज़न था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, डॉक्टर सदाओ के अलावा किसी पे बिलीव नहीं करते थे. दूसरा क्या रीज़न था, वो डिस्कवरी कर रहे थे रेंडरिंग द वूंड को एंटायरली क्लीन करने के लिए. उसके लिए भी उनको वहाँ रहना ज़रूरी था. How did Dr. Sadao get rid of enemy soldier? 2009. Dr. Sadao planned out everything beforehand. He put his boat on the shore with food and extra clothing. He asked the American prisoner of the war to row to a little island near the coast and then wait for a Korean ship to pass. He also gave the American his flashlight complete with his instruction on how to signal him in the time of distress. तो उन्होंने क्या क्या तैयारी की थी, उन्होंने पहले ही बिफोर हैंड इज कॉल्ड अर्लियर उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए थे. एक बोट उन्होंने कर ली थी, उसमें कुछ कपड़े, खाना, क्विल्ट वगैरह रख दिए थे और उसको बोला था कि देयर इज़ अ नियर बाय आइलैंड. ठीक है, तुमको वहाँ पर जाना है एंड ओनली यू हैव टू डिपार्ट विद अ कोरियन फिशिंग बोट, नॉट अदर दैन दैट. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक फ्लैश लाइट भी दी थी कि अगर तुम डेंजर में हो तो यू कैन फ्लैश इट वंस और ट्वाइस. What secret plan did the journal have about the American soldiers staying under the care of Sadao? 2008. The journal planned to get the American soldiers staying under the care of the Dr. Sadao assassinated by the private assassins of journal. He assured the doctor about the removal of the dead body also. तो उन्होंने क्या promise किया था कि भाई जो मेरे private assassins हैं, मर्डरर्स हैं, वो आएंगे और उसको मर्डर करेंगे और उसके बाद उसकी डेड बॉडी का जो ट्रेस है उसको भी रिमूव कर देंगे. Hana told Yumi to watch the soldier. How did Yumi react? 2008. When Hana asked Yumi to watch the soldier, she bluntly refused to do so, saying that she had never watched a white man and she would not watch a dirty one. Yumi obstinately told Hana that she was a poor person and did not want to associate with the man.
सो ऑब्स्टिनेटली इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो विथ हॉटीनेस, ठीक है, विथ हॉटीनेस, जिद्दीपन से। उसने साफ साफ मना कर दिया था, उसने फिर भी बोला कि भाई कर दो उसको, उसने कहा कि नहीं, मैंने व्हाइट मैन को कभी साफ नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं एक गरीब हूँ, मैं मुझे इन सब चीज़ों से नहीं मतलब, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, साफ मना कर दिया। Why did the servants leave Dr. Sadao's house? The servants left Dr. Sadao's house because they did not approve the white man staying in the surgeon's house. They thought that Sadao stay in America during his education has erased all his sentiments for his country. Also, they did not want to be in trouble with the authorities if Sadao was arrested as a traitor. क्यों छोड़ के चले गए, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था भाई, वहाँ पे प्रिजनर ऑफ द वॉर रह रहा था। उनके अकॉर्डिंग क्या था, वो सब बात कर रहे थे कि भाई डॉक्टर सदाओ एंड हाना दे गॉट देयर, दे कंप्लीटेड देयर स्टडी फ्रॉम अमेरिका एंड दैट्स व्हाई दे हैव लॉस्ट द सेंटिमेंट टुवर्ड्स द जापानीज पीपल। उनको अच्छे से पता था, वो लोग अनपढ़ थे लेकिन उनको ये पता था जापान के जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं। तो उनके अकॉर्डिंग भाई डॉक्टर सदाओ तो सब भूल गए हैं पढ़ाई लिखाई के बाद, उनका इस तरह का मानना था, सारे सेंटिमेंट उनके ख़त्म हो गए हैं। और दूसरी चीज़ जो उनके अथॉरिटीज़ थी, मतलब विद द अथॉरिटीज़ यहाँ पे हाई ऑफिशियल की बात की जा रही है, पुलिस की बात की जा रही है कि अगर डॉक्टर सदाओ अरेस्ट हो गए और प्रूव हो गए कि वो एक ट्रेटर हैं, एक देशद्रोही हैं, तो उन लोगों को वैसे ही जाना पड़ेगा, तो इससे पहले वो खुद ही चले जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको करने हैं, ये हैं 6 मार्क्स के। What was the journal's plan to get rid of the American prisoner is executed. What traits of the journal's character are highlighted in the lesson? अब देखो ये सेम दोनों क्वेश्चन कितने अलग है लेकिन आंसर दोनों का एक है कि जर्नल का क्या प्लान था कि भाई अमेरिकन सोल्जर से कैसे छूटा जा सकता है, गेट रिड ऑफ इज कॉल्ड बचना, ठीक है, कैसे बचा जा सकता है। और यहाँ पे जर्नल का क्या कैरेक्टर था जो हाईलाइट होता है, ये आया है 2014 में। तो जर्नल का कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर जो आप कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं, इफ़ यू हैव प्रॉमिस्ड फॉर समथिंग टू समवन, तो आर यू फुलफिलिंग योर प्रॉमिस और नॉट, तो वो कहाँ पे आता है, जिस इंसिडेंट से, वही इसका आंसर होगा। Dr. Sadao informed the journal about the presence of the American prisoner at the house. The journal decided that his private assassins would take care of him and even take his body away. Sadao agreed to the journal's proposal. However, the journal's assassins did not arrive for the next 3 days. Consequently, the journal's plan was not executed and Sadao spent 3 restless nights in the waiting of the assassins. Ultimately, he helped the prisoner escape. When Sadao informed the journal about the escape, the journal replied that he was sick and thus forgot about the whole affair. He further wanted that Sadao must not inform anybody about this. This shows that the journal was highly selfish. He had regard only for his own safety and pride. Also, he did not send Sadao to the battlefield as he needed his services himself. He considered himself more important than the lives of the thousands of the soldiers. So, यहाँ पे बताया गया है कि पूरी नेगेटिविटी बताई गई है कि जर्नल टकीमा वॉज रिगार्डेड एज अ वेरी नेगेटिव इन द आइज ऑफ द राइटर एंड द रीडर एज वेल, क्योंकि जब प्रिजनर ऑफ द वॉर के लिए उन्होंने जिस तरह के प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस उन्होंने कंप्लीट नहीं किए। उसके अलावा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई वो असेसिन्स आएंगे, उसको मार डालेंगे और उसकी बॉडी को भी रिमूव कर देंगे, बट उन्होंने क्या अपना बाद में एक्सक्यूज़ दिया कि भाई मुझे याद नहीं रहा, बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ माई डिटेरियोरेटिंग कंडीशन, आई फॉरगॉट। ये चीज़ से साफ साफ ये पता चलता है कि हाँ, मतलब व्हेन सदाओ वॉज इन ट्रबल ही वॉज जस्ट काउंटिंग द एक्सक्यूजेस, ओके, और मेकिंग हिम रियलाइज दैट ही वॉज रियली इन ट्रबल। अब यहाँ पर जब उसको ज़रूरत है तो वो सदाओ को कभी भी दिन को या रात को बुला लेते थे, लेकिन जब उसको ज़रूरत थी वो अपना प्रॉमिस भूल गए। इसके अलावा वो सदाओ को कभी बाहर ट्रूप के साथ नहीं भेजते थे। अब ट्रूप के साथ सोल्जर्स के साथ क्यों जाता है डॉक्टर, क्योंकि जो बैटल फील्ड में जितने भी सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं उनको ट्रीट करने के लिए वो कोई एक वेल नॉलेजेबल अच्छा डॉक्टर चाहिए। और डॉक्टर सदाओ वॉज रियली वेरी गुड इन हिज प्रोफेशन, बट ही जस्ट वांटेड डॉक्टर सदाओ स्टेइंग देयर ओनली फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ से उसकी टोटल सेल्फिशनेस दिखती है कि उसको सिर्फ अपनी जान प्यारी है, उसको बाकी जितने भी इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनके बारे में उसको कोई भी परवाह नहीं है। तो ये हमको एक कैरेक्टर स्केच भी अगर आता है तो आप वहाँ पर भी ये लिख सकते हो। What conflicting ideas arise in Dr. Sadao's mind after he had brought the wounded American soldiers home? Is the conflict resolved? ये आया है 2014 में। ये आपकी स्टार्टिंग चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। From the day Dr. Sadao found the wounded soldier outside his house, he had been caught up in a web of the conflicts and difficulties. The first difficulty arose when Dr. Sadao decided to operate upon the soldier. He was caught between his duty as a doctor and loyalty towards his nation. Nonetheless,
Sadao emerged as a champion in this regard. As an ethical and sincere doctor, he saved the life of the soldier. As a responsible citizen, he also informed the journal about the presence of the soldier. Next, when the journal's men did not arrive to kill the enemy, Sadao was again caught in a conflict as to how to get rid of the white man, and his innate virtues of compassion and benevolence forbade him from killing the man. Thus, he decided to let the prisoner escape by sending him off an unguarded island. To an unguarded island. This is how Dr. Sadao successfully resolved the conflict. कन्फ्लिक्ट का मतलब कन्फ्यूजन. तो पहले तो जब उन्होंने उसको लेकर आए, जब उसको देखा कि हाँ भाई प्रिजनर ऑफ द वॉर है, कोई घायल आदमी है जो शोर पे आया है, तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि मैं क्या करूँ, इसको लेकर जाऊँ या नहीं जाऊँ. अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया और उसको घर लेकर आए. उसके बाद उसकी हालत देखने के बाद फिर वो कन्फ्लिक्ट में पड़ गए कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए. अगैन ही हैज़ टेकन द डिसीजन कि इसका ऑपरेशन करना है. एंड उसके बाद जब वो ठीक होने लगा धीरे धीरे, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उन्होंने जर्नल को भी इसके बारे में बताया. लेकिन जर्नल ने जब अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, उसके बाद अगैन ही वॉज इन द कन्फ्लिक्शन कि अब वो इस प्रिजनर के साथ क्या करेंगे. देन ही हिमसेल्फ डिसाइडेड कि मुझे इस प्रिजनर को भेजना है, मतलब मुझे ये घर में नहीं रखना है, लेकिन इसको सेफली मुझे बाहर भी भेजना है. एंड दैट्स वाई ही डिड ऑल द अरेंजमेंट. जितना भी वो अरेंजमेंट कर सकते थे उन्होंने किया. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग द कंपैशन एंड बेनोवलेंस फॉरबिड हिम फ्रॉम किलिंग द मैन. ना कंपैशन आप जो सकते हो, कंपैशन एंड बेनोवलेंस ये दोनों आपका काइंडनेस, ठीक है, भलाई, दया भाव जो होता है वो. एंड फॉरबिड इज कॉल्ड डिनाइड. वो उनका जो इस तरह का कैरेक्टर था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं इसको ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता. एंड सेफली अगैन ही हैड कम ऑन डिसीजन. उन्होंने एक डिसीजन लिया और फिर उन्होंने उसको वापस भेज दिया एंड सक्सेसफुली रिजॉल्व हिज कॉन्फ्लिक्ट. मीन्स ही वॉज एबल टू रिजॉल्व हिज ओन कॉन्फ्लिक्ट हिमसेल्फ. Do you think Dr. Sadao's final decision was the best possible one in the circumstances? Why or why not? Explain with reference to the story The Enemy. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई जो फाइनल डिसीजन था आपके अकॉर्डिंग क्या था, कि भाई जो सर्कमस्टेंसेस थी, जो कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सही लिया था या नहीं. Dr. Sadao's final decision was the best possible one in the given circumstances. He has the instincts of a doctor. When Tom, the prisoner of the war, was found wounded, the first thing he did was to save his life. As a doctor, he was duty bound to save the life. Next, he completed the duty towards his nation by informing the journal about the presence of the prisoner. But finally, he helped the enemy escape, and his compassionate heart rose above the narrow confines of the hatred and war. As a Dr. Sadao could not have left the wounded prisoner of the war unattended, and so he decided to operate upon him and save his life. However, at the same time, he discharged his duty towards his nation by informing the journal about the enemy, and finally, the surgeon helped the enemy escape because his compassionate heart forbade him to kill the same person whom he had saved. अब यहाँ पर आप चाहो तो ये दो लाइनें हैं लास्ट की, क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि फाइनली उन्होंने जनरल को ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है, यहाँ पे बाय इन्फॉर्मिंग द जर्नल ऑलरेडी. तो आप चाहो तो यहाँ पे ये यहाँ से और ये यहाँ तक, इफ़ यू वांट यू कैन डिलीट दैट, ठीक है. ऑपरेट अपॉन टू सेव हिज लाइफ, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा. 120 वर्ड्स में आपका आराम से हो जाएगा. तो अगर आप चाहो तो ये जो लाइन है, बिकॉज दीज आर रिपीटिंग अगैन, ये दोबारा से रिपीट हो रही है, तो आप चाहो अगर तो इन लाइन्स को रिमूव कर सकते हो. हमने इनके बारे में पहले ही लिख दिया है. तो अगैन यहाँ पर डॉक्टर की ड्यूटी के बारे में लिखा है, उसकी लाइफ को सेव करने के बारे में लिखा है. वो उसने पर्सनल लेवल पे क्या डिसीजन लिया, उसने एज अ नेशनल पर्सन कैसे उन्होंने लिया, एज अ सिटीजन उसने क्या डिसीजन लिया, उस सब के बारे में लिखा है. ऑलरेडी बता दिया गया है. और इस तरह से जो उसका बेस्ट पॉसिबल था, मतलब यहाँ पे हमने क्या अग्री किया है कि हाँ उसका जो फाइनल डिसीजन था वो बेस्ट पॉसिबल था. इसके अलावा कोई भी दूसरा डिसीजन नहीं लिया जा सकता. तो जो उसने लिया था वो बिल्कुल एप्ट था उस पर जो चलता था, ठीक है. What impression do you form about Dr. Sadao as a man and a surgeon on your reading the chapter The Enemy? ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है. This is not at all from the text. ये आपको अपने आप लिखना है अपनी लैंग्वेज में. After going through the chapter The Enemy, we come to know the conclusion that Dr. Sadao was an excellent surgeon and human being. Per excellence, he appeared to be a man full of compassion and surgeon in the
truest sense of the word. Although he had a bitter experience of Americans being prejudiced when he was a student in America, he did not let that bitterness overwhelm him, and the doctor and the fine human being in him prevailed. He knew that if being found that he had harbored an American prisoner of the war in his own house, Ty would be labeled as a traitor. His conscience did not permit to let a human being die before his eyes, and he took his risk of being called as a traitor. It was not that he was a traitor. He promptly informed the journal about the whole incident. It showed that he was not a coward. He was ready to face the consequences. तो यहाँ पे हमने एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें डॉक्टर सदाव का मतलब कैरेक्टर स्केच करना है. तो आपने सबसे पहले उनके जो अमेरिकन के लिए जो प्रिजुडाइज्ड फीलिंग थी वो क्यों थी और कब आई, वो हमने लिखा कि वो अमेरिका में थे तो उनके कुछ बेटर एक्सपीरियंसेस थे, उसकी वजह से वो प्रिजुडाइज्ड फीलिंग आ गई थी जिससे वो नापसंद करने लगे थे. बट इसके बाद भी ही वॉज अ मैन ऑफ कंपैशन एंड अ सर्जन इन ट्रूएस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड. यहाँ पे उनके प्रोफेशनल और जो उनका एक्चुअल पर्सनालिटी ट्रेट है उसके बारे में लिखा कि ठीक है वो कंपैशनेट थे, एज अ सर्जन वो ट्रूएस्ट थे. उसके बाद जब उन्होंने उस POW को अपने सामने देखा, अपने घर के सामने देखा, तो वो तैयार हो गए. सबसे पहले देखकर उनको यही आया कि मुझे इसकी लाइफ बचानी चाहिए, और ये चीज़ उसको देखते ही पता चल गई थी व्हेन ही नोटिस्ड कि ये अमेरिकन है. इवन दैन ही वॉज रेडी कि ठीक है कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो बट सबसे पहले उसकी लाइफ बचाना ज़रूरी है. तो यहाँ हम दे सकते हैं ही वॉज रेडी टू बी लेबल्ड एज अ ट्रेटर. बट इन फैक्ट प्रॉम्प्टली ही वॉज एन एजुकेटेड मैन एज वेल. वो कंसिडरेट भी थे. उनको लगा था कि हाँ भाई वाई आई शुड कॉल अ ट्रेटर, इसलिए उन्होंने प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म भी किया जनरल को इस इंसिडेंट के बारे में, और इससे वो कावर्ड भी नहीं कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने अलावा हायर अथॉरिटी मतलब किसी ना किसी को पुलिस अथॉरिटी में पता ही था जनरल को. अच्छा, और वो सबसे हाई रैंक के जनरल को भी जाकर उन्होंने बताया था. और उसके बाद भी वो सारे कॉन्सिक्वेंस या के कॉन्सिक्वेंसेस इज कॉल्ड रिजल्ट, वो किसी भी तरह के कोई भी रिजल्ट्स फेस करने के लिए तैयार थे. Why did Sadao help the American soldier to escape? How did he do so? कैसे उन्होंने हेल्प किया, वो कैसे बच के गया? Sadao expertise in his profession and compassion as a human being were his most dominant personality traits. As a dutiful doctor, he could not have the let prisoner die of his injuries, and so he saved his life. At the same time, he acted like a responsible citizen and informed the journal of the presence of enemy. However, when the journal's men did not come to kill the American, Sadao decided to save his life. Dr. Sadao gave his boat to the young soldier, arranged food for him, and provided him the valuable information which helped him escape successfully. This is how Sadao helped the American soldiers flee and thereby saved his life. तो पहले वाले पैराग्राफ में हमने लिखा कि भाई क्या हुआ था एक्चुअल में, वो उसने एस्केप क्यों किया, उसकी नौबत क्यों आई, मतलब वो कंडीशन क्यों आई. तो पहले तो वो यही सोच रहे थे कि भाई जो जर्नल है उसके असिस्टेंट्स आएंगे और उसको मारकर चले जाएंगे. बट जब जर्नल का जो प्लान था उसके मैन नहीं आए तो सदाओ ने कहा कि अब तो मुझे ही कोई डिसीजन लेना है, एंड दैट्स व्हाई ही सेव हिज लाइफ बाय एस्केपिंग हिम. यहाँ पर आप ये चीज़ को है ये थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है. ऊपर की जो ये दो चीज़ें हैं ये आप कम कर सकते हो. नीचे आप जैसे उसने फूड रखा था उसके अलावा आप लिख सकते हो कि क्विल्ट्स, इनमें मतलब इन चीज़ों में जो सेव किया था तो उसने कैसे एस्केप किया, तो एस्केप का जो पूरा प्लान बनाया था आप वो लिख सकते हो, ठीक है. कि कैसे बे वॉचर शॉप से उन्होंने क्विल्ट खरीदा था, फूड खरीदा था, ठीक है, और वाटर खरीदा था, उसके पीने के लिए पानी लिया था. उसके अलावा कुछ उसको क्या दिया था, जापानीज़ क्लॉथ्स दिए थे पहनने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो नहीं लगे, तो जापानीज़ क्लॉथ्स दिए थे. उसके अलावा उन्होंने टॉर्च दिया था, यानी कि यहाँ पे आया है फ्लैश लाइट, हिज ओन फ्लैश लाइट जो वो खुद यूज़ करते थे, फ्लैश लाइट वो उन्होंने उसको दे दी थी. एंड उसके अलावा उन्होंने इंस्ट्रक्ट भी किया था. बाद में आप ये सारी इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो कि हाँ ये सारी इंस्ट्रक्शन थी. और कोरियन बोट जब आई तभी उसके साथ ही जाना था, मतलब उन्होंने अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया था कि तुम्हें किसी भी के भी साथ नहीं जाना है. मतलब व्हेन द अमेरिकन हैड गॉन इवन दैन ही वाज हैविंग अ काइंड ऑफ काइंडनेस फॉर हिम, कि वो किसी गलत आदमी के साथ चला गया तो फिर से प्रॉब्लम में फंस सकता है. तो उन्होंने उसको एडवाइस दिया कि कोरियन फिश बोट आए उसके साथ ही जाना है, बिकॉज दे वर टोटली अनअवेयर अबाउट दैट, ठीक है. वो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, वो तुमको सेफली पहुंचा देंगे, ये भी उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था. तो इस तरह से उन्होंने उसकी लाइफ को सेव किया. Why did Sadao Hoki go to America, narrate his experiences there? अमेरिका क्यों गए थे, उनके एक्सपीरियंस क्या थे वहाँ के, वो बताने हैं. पूरा नाम था डॉक्टर सदाओ होकी.
Sadao Hoki went to America to study surgery and medicine as it was the wish of his father. His experience of living in America was not very good, but he was grateful to have some good professors who taught him so well. Also, he was grateful to the professor at whose home he had met Hannah and immediately liked her. But he did not like the smell of their food, their small room, and the wife of the professor, who was very talkative. Although she tried hard to be kind. Initially, he had faced difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. He perceived that Americans were full of prejudice, and for him it was a bitter experience to live with them. क्यों गए थे भाई अमेरिका? वो सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने गए थे क्योंकि उनके फादर चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जिन लोगों से वो मिले उनके लिए उनकी फीलिंग्स थोड़ी सी अच्छी नहीं थी. प्रोफेसर्स अच्छे थे, वो ग्रेटफुल थे कि उन्हें इतनी अच्छी एजुकेशन मिली, बट इवन दैन वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं करते थे. एंड ही वॉज रियली ग्रेटफुल टू दैट प्रोफेसर वेयर ही हैड मेट हाना. लेकिन उसके बावजूद भी मतलब प्रोफेसर के घर मिलने के बाद, हाना से एक बार मिलने के बाद ही स्टार्टेड लाइकिंग हर. वहाँ की जो स्मेल थी खाने की, वहाँ के जो रूम थे, ठीक है, और जो उनकी वाइफ थी, इन सबको वो नापसंद करते थे. दूसरी चीज़, जब वो अमेरिका गए थे तो अमेरिका में उनको लिविंग प्लेस मतलब अपना रेजिडेंशियल ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी, बिकॉज रेजिडेंस वहाँ पर जापानीज़ के लिए मिलना बहुत मुश्किल था. अमेरिकन वर हैविंग द काइंड ऑफ प्रिजुडाइज, ठीक है. अर्लियर कुछ थाट्स होते हैं, एक आप बोल सकते हो प्री डिफाइंड थॉट्स थे अमेरिकन के, कि भाई जो जापानीज़ लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, या जो भी हो वो उनके देश के नहीं थे. तो इस तरह के जो थॉट्स थे उससे उनको वहाँ पे बहुत बिटर एक्सपीरियंस झेलना पड़ा वहाँ पे रहने के लिए. तो देखा जाए तो अमेरिका में वो करने तो गए थे पढ़ाई, लेकिन एज हिज ओन एक्सपीरियंस वाज बिटर इन अमेरिका. Dr. Sadao was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from a domestic staff? Now, जब उसके डोमेस्टिक स्टाफ ने डिफाइंस कर दिया, मना कर दिया, तो हाना ने उसकी हेल्प तो की, लेकिन अगर देखा जाए तो डॉक्टर सदाओ के अलावा, मीन्स अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर सदाओ, हाना वॉज ऑल्सो हैविंग अ काइंड ऑफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्रिजनर. तो वो कैसे हुआ वो बताना है. As a doctor, it was Dr. Sadao's moral responsibility to save Tom, the American prisoner of the war, but Hannah was under no such compulsion. In spite of, she abided by her husband's decision because she was a dutiful wife who pledged to support her husband even though the most difficult times. Secondly, Hannah, being a woman, was soft-hearted. She could not see wounded person being left in lurch. As a woman, she adorned the role of a life giver and a preserver. She could not have been a destroyer. That is why she cleaned the prisoner when her maid was unwilling to do so. She also assisted her husband in the operation on the American despite the fact that she could not stand the blood and started vomiting when she saw it. She was thus a dutiful wife and life giver. तो यहाँ पे क्या बताया गया भाई कि डॉक्टर सदाओ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टॉम को बचाना, ही वॉज अ डॉक्टर, उनको ही ऑपरेशन करना था, और जो मेन हेड थे उनको वो डिसीजन लेना था. बट हाना का क्या था? हाना तो मना भी कर सकती थी, बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेस उसके थे एज अ वाइफ, एज अ वुमेन, वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेस थे ना, उनकी वजह से शी वॉज रियली हैविंग द सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्रिजनर ऑफ द वॉर. मीन्स शी वॉज रिगार्डेड एज अ लाइफ गिवर, ठीक है. वुमेन को समझा जाता है, लाइफ गिवर समझा जाता है, प्रिजर्वर समझा जाता है, जो एक नई लाइफ को जन्म देती है, नई लाइफ को बहुत टाइम 9 महीने प्रिजर्व करके रखती है. वो एक डिस्ट्रॉयर नहीं हो सकती है. दूसरी तरफ हाना एक ड्यूटीफुल वाइफ थी. उसने प्लेज लिया था एट द टाइम ऑफ द मैरिज कि वो हमेशा डिफिकल्ट टाइम में अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, एंड दैट्स वाई शी डिड सो एज शी हैड प्लेज्ड अर्लियर बिफोर एट द टाइम ऑफ मैरिज. तो यहाँ पर उसने कई जगह अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया. जब डॉक्टर सदाओ वॉज मैनेजिंग ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट एंड ही वॉज आउटसाइड ऑफ द रूम ऑफ प्रिजनर ऑफ द वॉर, तो उस टाइम पे उसने प्रिजनर को साफ किया था, वॉश किया था, क्योंकि यूमी ने मना कर दिया था. उसके बाद ऑपरेशन, शी वॉज अनविलिंग टू सी और स्टे इन दैट मच ऑफ ब्लड, बट इवन दैन शी स्टेड ओवर देयर. शी हेल्प डॉक्टर सदाओ बाय गिविंग एनेस्थीसिया टू टॉम, जब उन्होंने बोला, और उसके बाद पोस्ट रिकवरी में भी उसने काफ़ी हेल्प की. उसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किस तरह से उसने बाय गिविंग, ओके, और या बोल सकते हो बाय फीडिंग
by feeding him, with her own hand, because he was unable to eat. ओके वो तो खाने लायक था ही नहीं, तो यहाँ पे उसने अपने हाथों से उसको कितने दिनों तक खाना खिलाया है, उसकी देखभाल की है, हर छोटी मोटी चीज़ का ध्यान रखा है. तो यहाँ पे उसका कंपैशनेट एंड जो वुमेन एंड फेमाइन डेलिकेट सॉफ्ट हार्टेड वुमेन है वो यहाँ से पोर्ट्रे होता है. ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन. आई होप आपका पूरा रिवीजन हो गया, इंटायर ऑफ द चैप्टर का रिवीजन भी हो गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पता चल गया, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या हटाना है, क्या इंक्लूड करना है, वो भी आपको सब अच्छे से समझ में आ गया. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ class 12. Till then, take care and keep studying.